Huge success at the age of 96 years. World level recognition at the age of 96 years. Is it easily believable और डिज़ायरेबल? क्योंकि हमारी जो रिटायरमेंट एज है दैट इज़ एज पर द गाइडलाइन इज़ 60. Somewhere it's 58 as well. So a person, a woman receiving the highest civilian award at the age of 96. Yes, today I'm going to tell you a story of a woman who receives the Padma Shri Award at the age of 96 for her incredible contribution for the preservation of traditional art and culture. Hello friends, welcome to Ishita's podcast, the platform where we learn, share and grow. So आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग तरीके की तरह की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन भीमब्बा दोद्यावलप्पा, द रिसेंट पद्मश्री awardee in 2025 for her immense contribution to keep the 800 years old art form of southern India, that is the shadow puppetry, जहाँ पे एक पपेट्स होते हैं जो लेदर से बने होते हैं एंड दे आर यूज्ड टू create the puppetry show with the help of the shadow. Today's stories is all about the devotion, the people who are shining through their relentless service to the mankind. This is not only a story of puppets, but also of passion. This is not only conserving or practicing a cultural tradition, but of courage. This is not only a profession, but nurturing and torch bearing of 800 years old traditional art form. This has been also a form of mass media in time, since time immemorial. And this is so unique for a woman to struggle but to live by her stand, her passion, and get recognition at the age of 96 years. For a while, let's travel back to 8th century and understand the cultural perspective of this shadow puppetry. तब क्या होता था कि people used to have the means of mass media and entertainment, at the same time educational purpose also. So क्या होता था, शाम को, रात को rather, लोग इकट्ठे होते थे in the moonlit night, and they used to be this puppeteers who used to create, entertain people with the stories from Ramayana, Mahabharata and any other folklore and any ancient wisdom. These shows also used to be taken into practice for general community education. तो रात को जब मूनलाइट नाइट होती थी, देयर यूज्ड टू बी अ कपड़े का स्क्रीन एंड ऑयल लैम्प टू क्रिएट द शैडो, एंड दे यूज्ड टू sing, speak with the help of this leather
puppets to create shadows and उसी को लोग देखते थे. तो एक ही आर्टिस्ट जो पपेट बनाती भी थी और दे यूज्ड टू हैव ऑल द कंटेंट जो भी उस शो के लिए चाहिए होता था, एंड 1 or 2 narrators used to run the whole show. अच्छा, इस एपिसोड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल टू नो. ये जो पपेट्री शो है उसको लोकल लैंग्वेज में दोगालू गोम्बेयत्ता बोलते हैं. उसका मतलब ये है कि लेदर के डॉल्स, चमड़े की गुड़िया या डॉल्स जो भी आप बोले, तो उसका क्या होता था कि जो आर्टिस्ट थे वो खुद गोट स्किन से बकरी के चमड़े से उसको बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू कट द ड्राई स्किन्स एंड यू नो द वे प्रोसेस होता है, फिर उसको कलर करना, उसको डेकोरेट करना, उसको अपनी गुड़िया जैसे बनाना और उसी को लेके फिर शो करना. एंड ये उनका सीखना होता था. दे यूज्ड टू बी ट्रेन्ड कि इस शो को कैसे करें. सो इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस जहाँ पे नॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंस होती थी, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू टेल टू द होल ऑडियंस द फुल स्टोरी ऑफ रामायण महाभारत, then you have to have the knowledge or anything you want to pass on to the public in general, community in general. So let us know little introduction regarding Bhimamba, जो कि मोरानला विलेज कर्नाटका में उनका जन्म हुआ था, एंड वो उसी फैमिली को बिलोंग करती थी जहाँ पे ये पपेट्री शो किया जाता था, बनाया जाता था, सिखाया जाता था. सो सभी लोग उसी कल्चर में वो बड़ी हुई, एंड ये जो हुनर है, ये जो क्वालिटी है, दैट गॉट इम्बाइब्ड विद इन हर वेरी ईजिली. लेकिन उनके भी फैमिली में उनके अपने क्राइसिस रहे. बचपन में उनको अच्छे से ये सिखाया गया, उसको बनाना बोलना सभी आता था. एक्चुअली दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट? तो उस ज़माने में ऐसे ही स्टोरी टेलिंग होती थी, ऐसे ही मास कम्युनिकेशन होती थी. लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मीडिया अपनी जो फेस है वो चेंज करती रही. फिर इलेक्ट्रिकल मीडिया आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया. अभी तो बस हद ही है, एवरीथिंग इज़ देयर एट योर फिंगर टिप. तो उस माहौल में, उस ट्रांजिशन में, ये जो 800 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन, उसको भीमब्बा कैसे जिंदा रखती है, वही उनकी स्टोरी है. बट एज वी नो, भीमब्बा की लाइफ इतनी आसान नहीं थी. शी हैड हर ओन क्राइसिस. जल्दी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, एंड शी लॉस्ट हर हस्बैंड एट वेरी अर्ली एज. तब बच्चे थे साथ में और काम नहीं कर पा रही थी, अपने पैशन को जी नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चों को पालना था. तो वो छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे पैसे के लिए वो जितना हो सकता था शी यूज्ड टू डू हर शोज़. लेकिन उस तरीके से नहीं चलता था. बट शी केप्ट हर प्रॉमिस ऑन, क्योंकि वो पपेट नहीं थे उनके लिए, वो तो पैशन थे, वो तो एक रास्ता था जीने का. तो शी ट्रैवल प्लेसेस, वो गांव से गांव जाती थी और ये शोज़ करती थी. बहुत कम पैसे उन्हें मिलते थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, ये जो उनके धरोहर है संस्कृति का, उसको वो कभी नहीं छोड़ पाई. उसी तरीके से वो बच्चों को भी बड़ी करने लगी थी और गांव-गांव में घूम के अपना शोज़ भी करने लगी थी. ऐसा बहुत बार हुआ
कि उनको ना खाने को मिला ना सोने को जगह मिला, बट शी केप्ट ऑन डूइंग what she wanted to. She made her desires very less at the cost of keeping this puppetry alive. तो उसमें क्या होता था कि उनके पास जो पपेट्री की सामान थी वो भी एज ओल्ड हो गई थी, फटने लगे थे, तो बट दैट डिडंट स्टॉप भीमप्पा. उन्होंने वही फटा हुआ लेदर की जो टॉयज़ है उनको रिपेयर किया, अपने हुनर से उनको फिर से रिकलर किया, एंड शी वेंट ऑन. ऐसा भी होता था कि उनके शो में कभी कोई नहीं, कभी एक, कभी दो, कभी बच्चे, बट शी केप्ट ऑन डूइंग एंड पासिंग द लर्निंग टू द नेक्स्ट जनरेशन. और इस बीच जैसे आपको पता है मीडिया की शेप एंड साइज़ चेंज होती गई, वर्ल्ड चेंज होते गए. इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड चॉइसेस इवन इन द विलेज, होता है ना, बहुत सारा कुछ कर सकते थे, बट शी चूज़ टू स्टिक टू दिस. एंड उन्होंने लास्ट 2 decades में नॉट ओनली शी ट्रैवल्ड विलेजेस आफ्टर maybe 60-70 years में, and she not only performed, she tried to teach this art to the next generation, and at least 50 enthusiasts, 50 लोग जिन्हें वो सिखाई है. and that's not very easy at this digital age कि गांव के बच्चे ये शैडो पपेट्री सीखेंगे. That's not an easy task. So she has been a role model. She has performed, she has convinced, and she has mentored a set of youngsters जिनको ये आर्ट फॉर्म अच्छा लगा और वो राज़ी हुए इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए. Though that is something great, because when she'll be living, she ensures that her legacy would be on, and that would pass on to the generation next or generations after generations. So her contribution to the cultural arena of southern part of India, एक 800 साल पुराना आर्ट फॉर्म को जीवित रखना, that's something commendable, and that is something which requires a lot of applause. And that's the time, after a life of struggle, consistency, dedication, devotion, passion और सब कुछ जो चाहिए एक 800 साल पुरानी आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखना इन दिस डिजिटल एज, उन्होंने वो सब किया. एंड फाइनली शी वॉज बीइंग awarded with the highest civilian award, that is Padma Shri, for her unique contribution for the cultural heritage of भारत. तो ये जो कहानी है, इस कहानी से what we can learn, that's the question I should ask myself, and I think all of us should ask ourselves कि हम जो आजकल ना हमें बहुत क्विक सक्सेस चाहिए होता है. वी जस्ट count years, we count months, we count weeks, we count days, we can count hours कि कितना जल्दी हम मूव करें, प्रोसीड करें और कितना जल्दी हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए. बट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आर, आई थिंक, रियली आई ओपनर्स to show that our dedication, our concentrated work, our focus is going to reward us definitely at one point of time.
अभी अगर हम ये सोचें कि इस स्टोरी से हमें क्या क्या पता चलता है, भीमप्पा की लाइफ हमें क्या क्या सिखा के जाती है। उनके पास कुछ नहीं था, बस एक पर्पस थी, एंड शी लिव्ड बाय दैट पर्पस। कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी, बट शी केप्ट ऑन डूइंग, विच वी नो एज परसिवियरेंस। जितने फेलियर्स आते हैं, जितने हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस आते हैं, दैट नॉर्मली कीप्स पीपल टू टेक अ बैक सीट। लेकिन यहाँ पे तो कितनी मुसीबतें आई होंगी, कितने हिंड्रेंस, कितने ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, बट शी डिडंट लीव द हैंड ऑफ दिस शैडो पपेट्री। एंड ये जो रेजिलियंस है कि जितने बार भी मुझे फेलियर क्यों ना झेलना पड़े, आई हैव द करेज टू बाउंस बैक, टू स्टैंड बैक एंड डू what I want to do for the next period of life. So भगवान का दिया हाथ, कान, नाक, आँख, ब्रेन सभी तो है ना। एक फेलियर कैसे आपको डिफाइन कर सकता है? एक फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी, एंड इट इज़ ऑलवेज, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग, दैट गेट्स पॉलिश्ड, और वो करेक्ट तो होना ही है if you don't leave that in between. So एक focus, एक perseverance, dedication, devotion, relentless service और selfless service तो हमें अभी चाहिए उस दौर में, उस टेंशन में, उस एंजाइटी में, क्या हम अपना बेस्ट दे पाते हैं? ये एक बार पूछने की बात है। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? एट द एंड ऑफ द डे हमें और आपको चाहिए क्या? खुशी चाहिए। और खुशी का डेफिनेशन क्या है? सिर्फ पैसे से आती है? अगर आपको सैलरी मिल गई तो ही आप खुश हैं? इज़ इट सो? प्लीज़ थिंक एंड टेक अ पॉज एंड थिंक कि what you want to do in life and how you want to kind of design your happiness. आपकी खुशी किस में है, and what is the purpose that you are living with. और उसके बाद ये है कि एक तो क्वेश्चन बनता है आप सबके लिए, अगर ये स्टोरी विच are the stories of unsung heroes, are the stories of exceptional people who do not get enough limelight. तो ये स्टोरी अगर आपको थोड़ा सा भी टच किया है, then I would like you to please share your thought in the comment below. अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है ये सुन के, बिकॉज शेयरिंग फीलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड मैं भी अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से. सो आई रियली विश एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर योर फीलिंग. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है सभी के लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए ये एक जनरल अवेयरनेस का एरिया है. सो फॉर फ्यूचर रेफरेंस आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, हमारे कितने ऐसे आर्ट फॉर्म होंगे जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो हमारे नए पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को इतना पता नहीं है. तो यहाँ पे दो लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है. एक है माए और पिता, और एज ए होल पेरेंट्स, गार्जियन, और एक है बच्चे. क्या हम मिलके थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल लाइक आर्ट फॉर्म्स है जो धीरे धीरे इन दिस डिजिटल एरा, और जो भी आर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं अभी कंटेम्पररी, उसके चलते हमारी खुद की ट्रेडिशनल कल्चरल रिच हेरिटेज
हमारे हाथ से छूटते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. प्लीज़ check with your parents, please check with your grandparents and comment to let us know if we can find out some ways to conserve those, some ways to keep that tradition on, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारे रूट्स है, उसी से हम जाने जाएंगे. हम किसी और के कल्चर से तो जाने जा नहीं सकते. सो हमारी कल्चर, हमारी जो रिचनेस है, उसको हम क्यों ना आगे लेके आए. सो ये जो पॉडकास्ट है, दिस इज़ अ मीडियम सो दैट टू टेल यू स्टोरीज, टू let you know some exceptional work done by exceptional people. As I already mentioned, that this is a platform where we will try to learn from a very unique perspective, or there are some stories which can have a very unique touch, and क्या पता वो हमें समथिंग, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ सिखा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सिखा जाए, विच कैन बी अ टेक अवे फॉर आवर होल लाइफ. सो आज की स्टोरी का क्या टेक अवे है आपके लिए? आपने क्या समझा, क्या जाना? वॉट वॉज अ आई ओपनिंग मोमेंट फॉर यू? प्लीज़ टू कमेंट. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस if you think this will increase the knowledge of people, students, mothers, parents, any and everyone. So with this note, आज के लिए बस इतना ही. इशिता's podcast, the platform for learning, sharing and growing. और मत भूलिएगा, आज आप अगर नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट और बहुत सारी नए कहानियाँ और बहुत सारी कुछ आने वाले हैं, वो आप मिस ना कर जाए, और इशिता's पॉडकास्ट आपको ढूंढ पाए इतने भीड़ में जो यूट्यूब में सारे लोग अच्छे कंटेंट दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग. विद दिस नोट, आई एम signing off. Meet you in the next episode.